नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। एक फिल्म आई थी अभिनेता धर्मेंद्र की, उसका एक गाना था, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। हर आदमी अच्छे जीवन की कल्पना करता है, भविष्य की कल्पना करता है, और हर देश भी कल्पना करता है कि उसका भविष्य सुंदर हो, झिलमिल सितारे जगमगाएं, कोई भूखा ना सोए, कोई बेरोजगार ना हो। ये कब संभव हो सकता है? जबकि सपना देखने की आदत हो और सपना बनाने की आदत हो और सपने का एरिया तय किया जाए, क्षेत्र तय किया जाए कि उस सपने का ताना बाना किस एरिया के चारों ओर बुनना है। हमारे यहाँ योजना आयोग है भारत सरकार में, और भारत सरकार का योजना आयोग ये काम करता है, सपनों का ताना बाना बुनने का काम करता है। और उसका एक डॉक्यूमेंट आया है कल, भारत विजन 2020, यानी कि 2020 में भारत कैसा होगा। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, सबको दवाई मिलेगी, तमाम तरह की चीजें इस विजन में हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि 2020 का भारत कहां जाकर के खड़ा होगा। और इस तथ्य में, इस डॉक्यूमेंट में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, क्या उस सीढ़ी पर चढ़कर उस सपने को पूरा किया जा सकेगा या नहीं। हमारे बीच में तीन अर्थशास्त्री, तीन इस सपने के ताने बाने को जानने वाले लोग, जो कि जानते हैं किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस पे नहीं, वो मौजूद हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं, लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप फोन उठाएंगे और सीधे हमसे बात करेंगे। 24100001, 24100003। हमारे बीच में मेहमान मौजूद है। मैं आज सबसे पहले आपका परिचय कराऊं, डॉक्टर एसपी गुप्ता हैं, जो कि अध्यक्ष हैं इंडिया विजन 2020 पेपर के, डॉक्यूमेंट के, और सदस्य हैं योजना आयोग के। डॉक्टर गुप्ता, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में ललित खन्ना हैं, जो कि कार्यकारी निदेशक हैं स्कॉट्स म्यूचुअल फंड के, अर्थशास्त्री हैं। ललित जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अरविंद बिरवानी साहब हैं, जो कि निदेशक हैं ICRIER के और जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गुप्ता जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जो सपना है इस डॉक्यूमेंट में, 2020 में जिस भारत को आप देखना चाहते हैं, वो सपना क्या है? Can I speak in English? Yeah. Now, when we started the whole exercise, it was thought that a country must have a vision where it wants to go, because day to day we find we are bogged down with many small things which is temporary. I'm giving example. People are now worried that with 5.6% growth rate, how can it increase growth rate? But world situation, recession has come. Something has happened in the nature front. Therefore, we must get rid of the small innovations of the short-term period. At the same time, vision doesn't mean we'll be able to give clear projection as this is the extrapolation of the past. Reason being, 20 years is a very long period of time. 20 years hence, in 1980, when I was in India, I couldn't think of this communication system, the present telecommunication explosion. Therefore, no one knows 20 years hence how much change will be there. The vision is a recording of the people's aspiration and see how much they can be actionable with the potentials of the country. And that's why in the assessment, first of all, we have to find out what's the basic potentials and what are the things emerging to get the aspiration of the people, which since independence all are looking for. And in general, there will be tremendous discontentment. Matching the two is the main purpose of the vision. Now, if you just allow me, Now, Mr. Gupta, if I ask you, for a common man, our viewer, if I ask you, what is the dream you are going to have for 2020? I ask you in a one line, how you explain this document? I explain the document by saying that we want a society where everyone will be free from hunger, everyone will have a job or responsibility for having a job opportunity, equal privileges. We have health, all of them in good health. We'll have basic security of the country. We have the many problems regarding congestion, urbanization will not be there.
But in doing that, we find in the vision, some of them in 20 years is a too short period. Just as one side is 20 years too long, another is too short period. ओके, ललित जी आप क्या कहेंगे जो गुप्ता जी ने कहा? आपके हिसाब से आपने ये डॉक्यूमेंट देखा है? सी एज अ जो मिशन की स्टेटमेंट है उसके हिसाब से जो गुप्ता जी कह रहे हैं वो ठीक है। कोई भी प्लानर या कोई भी किसी कंट्री की लीडरशिप तो यही चाहेगी कि नीड्स पूरी हो जाएं, जॉब्स हों लोगों के हाथ में, और जो मुश्किलात आज हैं वो हल हो जाएं। तो वो अटेम्प्ट जरूर है इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन अब आगे हमें जो डिस्कस करना है वो ये है कि जो वेरिएबल्स इन्होंने लिए हैं इस डॉक्यूमेंट में वो पूरे हैं या इसके अलावा कुछ रह गया है। एक विषय जो मुझे यहां नजर नहीं आता वो है ग्लोबलाइजेशन का। इसमें टच अपॉन किया गया है, लेकिन हम अपने आप को ये नहीं कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक वर्क प्लेस है, जो मार्केट प्लेस है आज से 20 साल बाद, वो वही उसी तरह का होगा जैसा आज है या बिल्कुल बदल जाएगा। हो सकता है कि वर्कर्स मूवमेंट बहुत बढ़ जाए, जो आपके यहाँ पे स्किल्ड लेबर हैं या स्किल्ड साइंटिस्ट हैं, इन बहुत बड़े लार्ज नंबर्स में वो बाहर हों। अगर ऐसा होने जा रहा है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत डिफरेंट हैं और वो शायद इस डॉक्यूमेंट में नहीं आई है। देखिए, अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं कि क्या विजन होनी चाहिए फ्यूचर, शायद समझिए 10 साल 15 साल 20 साल पहले, मैं खाली 3 चीज़ उसमें रखूंगा, क्योंकि हमारे पिछले 50 साल में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें पे फोकस किया है और एक कोई चीज़ क्लियरली अचीव नहीं करते। तो ज़्यादा चीज़ें अचीव करने में यही दिक्कत रहती है कि कई बार कुछ भी नहीं अचीव होता। तो मैं 3 चीज़ें रखूंगा जी। एक तो जिसको कहते हैं इनकम लेवल, वो इन्होंने इस रिपोर्ट में किया है मिडिल इनकम लेवल। उसका मतलब क्या है मेरे लिए ये है कि देयर शुड बी नो अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी इज अ जनरल टर्म जो आपने कही है वो ठीक है, बेरोजगारी और पॉवर्टी बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। क्योंकि कोई भी विजन मैं रखूं, चाहे 2010 में हो, 15 में, 20 में, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि ये खत्म हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि अभी भी होगा और हंगर भी होगा, फिर विजन पूरी नहीं होती मेरी। तो इसलिए मेन पार्ट अगर मैं विजन रखूं तो बेरोजगारी और हंगर पॉवर्टी खत्म हो जाए, एक चीज। दूसरी चीज है कि सारे जो हमारे देशवासी हैं उनको एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए। हो सकता है कि आप या मैं या कोई पढ़ना ना चाहे, वो पूरा एजुकेशन 100% नहीं होगा, बट एवरी सिटीजन जो भी हमारे देशवासी हैं उसको ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि पैसे नहीं है या पैसे कम है मैं सेकेंडरी एजुकेशन नहीं कर सकता। तो यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन पॉसिबिलिटी, ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज जिस पे मैं फोकस करूं अगर मैं विजन बना रहा हूं, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगेन ये नहीं हो सकता कि हम कह दें कि किसी को कोई डिजीज नहीं होगी। हो सकता है आपको हार्ट अटैक हो, मुझे कुछ और हो, वी कैन नॉट एलिमिनेट एवरीथिंग, बट जो हम कर सकते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर है, क्योंकि एक से दूसरा स्प्रेड करना, इन्फेक्शियस डिजीजेस, पानी को ठीक करना, उसको दैट इज ऑल पार्ट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट शुड डू। तो ये 3 चीजें अगर हम कर लें, चाहे 10-15 में या 10-20 में, दैट वुड बी अ गुड विजन एंड अचीवमेंट। वर्मानी जी बहुत अच्छा कहा आपने। आगरा से हमारे एक दर्शक का फोन है। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो नमस्कार साहब जी। हाँ साहब, हमारा एक प्रश्न है जी। ये सब विद्वान लोग बैठे हुए, हमारा प्रश्न ये है कि 1947 से जी अभी तक हम लोगों ने केवल 38% लोगों को वास्तव में एजुकेशन दे पाए हैं। जी जी। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जी। क्योंकि हम ये सरकार जो है वो रिट्रेंच कर रही है लगातार। ये पब्लिक सेक्टर को जो है डिसइन्वेस्ट कर रहा है जी। तो आप सवाल करें साहब। ये केवल मुझे लग रहा है केवल एक, हाँ सवाल ही कर रहा हूं सर जी। तो ये 2020 तक जो एक बनाया है विजन जी, तो इसमें सर कैसे पूरा एजुकेशन दे पाएंगे, कैसे डेवलप हो पाएगा सर देश? समय तो ये लग नहीं रहा है, तो इसका थोड़ा व्याख्या करके बताएं सर। जी धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आपके सवाल का जवाब देंगे। गुप्ता जी मैं चाहूंगा आपके सवाल का जवाब दें, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और लौट करके आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन अगर आपके जहन में देश के सपने के बारे में कोई सवाल है तो आप तुरंत फोन उठाएं और बताएं हमें।
आपके हिसाब से आपके मन में क्या सवाल है भारत 2020 के बारे में, छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला। MDH असली मसाले सच MDH। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. MDH वो अगरबत्ती की सुगंध, वो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे सपनों का भारत 2020 कैसा हो, इस पर बहस हो रही है। बहस में आप शिरकत कर सकते हैं। आपके अगर जहन में कुछ सवाल है तो फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा फोन नंबर है 241001 241003। हमारे बीच में मेहमान हैं, मैं आपका दोबारा से परिचय करा दूं। डॉक्टर SP गुप्ता हैं जो कि अध्यक्ष हैं इस डॉक्यूमेंट के, इंडिया विजन 2020 के, और प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं। ललित खन्ना जी हैं, अरविंद विरमानी साहब हैं। इससे पहले कि हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, जरा मैं आपको अपने दर्शकों को ये बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट में जो मेजर चैलेंजेस है, यानी कि मुख्य चुनौतियां जो हैं भारत के लिए क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूं जो इस डॉक्यूमेंट में है, ताकि आपको विस्तार से चीज समझ में आए कि क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि टारगेटेड अप्रोच टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ फैमिलीज अबव पॉवर्टी लाइन। दूसरा है जनरेशन ऑफ नियरली 10 मिलियंस, यानी कि 1 करोड़ के लगभग, ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर एनम, स्पेशली फॉर दोज इन द लोअर इनकम ग्रुप। एरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, a concerted effort to raise primary and secondary enrollment rates and minimize dropouts, improved public health to reduce infant mortality and child malnutrition, massive investment in power generation, telecommunications and other physical and social infrastructure, and accelerated acquisition of technology capabilities to raise productivity in agriculture, industry and services, and becoming a more important player in the world economy in terms of both trade and investments. ये चुनौतियां हैं। दूसरे मुद्दों पर हम बात करेंगे जब हम नौकरी की बात करेंगे, लेकिन एक शिक्षा को लेकर के सवाल था आगरा से। मैं चाहूंगा कि मिस्टर SP गुप्ता उसका जवाब दें। गुप्ता जी, कैन यू जस्ट आंसर टू अवर व्यूअर हु हैज आस्क्ड द सर्टेन क्वेश्चन टू यू? Yes, the question about education. Yeah. First, I like to mention one thing. When you see in 2020 what will be the position education where we want to reach, 2020 picture will be different, scenario will be different than now. That you have to keep in mind. For example, in 2020 the old age people will increase by 65 to 70%. The population, although increasing by 1.3%, the labor force growth will increase by 2.2%.
Old age will be 3.3%. Therefore, need for health care for the old people is totally different that time now it is. Similarly, because labor force will increase so much, need for job and employment opportunities will be totally much more than what it is today. Whereas in primary education we find students below 15, their numbers will almost remain the same. Their primary education will be comparatively easy to tackle. नहीं, बट जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, खैर वो एजुकेशन की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अदरवाइज तो सारा एरिया ही उस पे हो जाएगा. लेकिन लेट्स कम टू द बेसिक्स ऑफ दिस इकोनॉमिक थिंग. यू वांटेड टू रिएक्ट मिस्टर गुप्ता ऑन व्हाट मिस्टर ललित खन्ना एंड मिस्टर बिरमानी हैज सेड. इफ यू वांट टू से यू कैन से. In fact, just let me globalization part. Globalization part, main thing we find there are certain trends in the global context which is not India specific and which cannot be reversed. The trend is on the technology side, on the composition of labor force, because for example we calculated in European countries nearly 150 million technical people will be in shortage in 2020, whereas we have tremendous surplus. There was a whole question of movement of technical manpower and others come. There were certain things, it's very much appearing in the global context, in the whole area of the communication, technology and so on. Now those trends or globalization has been taken place. The details is in the main chapter. I will come back to you, Mr. Gupta. हरदेव सिंह is online from Delhi. हरदेव सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. बताएं आपका क्या सवाल है. हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटों के लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है और वो डेवलपमेंट के ऊपर जो मान लो 100 रुपया दिया तो उसमें ज्यादा स्टेटों में कहीं 15 रुपए खर्चा आता है, कहीं 20 रुपए खर्चा एक्चुअल होता है, कहीं 40 रुपए होता है, कहीं 50 रुपए होता है. तो क्या इसके अंदर वो उतना मल्टीप्लाई करके पैसा रखा गया है कि डेवलपमेंट पूरी करने के लिए वो ज्यादा बजट दिया जाए? जी धन्यवाद सर. आपका सवाल का जवाब हम चाहेंगे गुप्ता जी देंगे. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया. लेकिन हम लोग ललित भाई एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं. इससे पहले गुप्ता जी उस बात का जवाब दें, घूम के आए. सवाल ये है कि इस डॉक्यूमेंट में दिखाया गया है कि जीडीपी जो है 8.5 to 9% होगी 20 साल में, और हमारा जो है जो अपलिफ्टमेंट होगा पॉवर्टी का, गरीबी का, वो उससे दूर होगा. दे हैव एनविसेज्ड इन दैट. आपको लगता है कि प्रेजेंट गिवन सर्कमस्टांसेस में जो हमारी ग्रोथ रेट होने वाली है 9%, विच इज अचीवेबल? हिस्टोरिकली तो हम ये नंबर अचीव नहीं कर पाए हैं एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के बेसिस पे. 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरह के ग्रोथ रेट दिखाए हैं. एक जापान है जो आजकल तो बिल्कुल टूटे हुए हैं वो, लेकिन एक लंबे पीरियड वो इस तरह के ग्रोथ रेट्स पे रहे हैं. और आज की तारीख में चाइना है. चाइना के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनका डेटा इनवेरिएबली अनरिलायबल रहा है. तो वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. लेकिन 8, 8.5, 9% हो जाए बहुत अच्छा होगा. लेकिन मुझे ऑड्स, प्रोबेबिलिटी कि हम इतना अचीव कर पाएंगे, मुश्किल लगता है. देखिए, हाँ, मैंने इस चीज का स्टडी किया है. एक्चुअली 3 कंट्रीज हैं जिनका कुछ सालों के लिए भी गया है, बट देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री एक्चुअली जिसने 10 साल या 20 साल 9% पे रखा हो. बेसिकली ये 3 कंट्रीज हैं. चाइना तो अब आया है, पहले जापान और ये ठीक बोला कोरिया, और अब थोड़ी दिन के लिए चाइना. तो सस्टेन करना हो 8.5 to 9% इज वेरी वेरी डिफिकल्ट है. जो इन्होंने बोला ये बिल्कुल सही बात है. पर मेरे विचार में इट इज नॉट इवन नेसेसरी. अगर आप 2 डेकेड्स के लिए 20 साल 7 से 7.5% पे ग्रो कर सकें, तब जो बहुत सी और प्रॉब्लम होती हैं, रिसोर्स जनरेटेड होते हैं, उसको गवर्नमेंट अगर ठीक जगह लगाए, एजुकेशन और कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे मैंने बोला था 3 पर्पस हैं जो 3 विजन में हैं. जो ग्रोथ रेट है वो आपका इनकम जनरेट रेट रेज करेगा, उसका पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा. बाकी जो उसमें से टैक्स रिसोर्सेज आएंगे उसको फोकस करिए ठीक जगह. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट
focuses its own attention जो चीजें वीक होती हैं, जो प्राइवेट मार्केट्स नहीं कर सकती, और उसमें ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पर है। इस डॉक्यूमेंट में एक बात अरविंद जी और भी है कि इन्फ्लेशन की तरफ तवज्जो हमने नहीं दी है। कीपिंग इन माइंड द इन्फ्लेशन विल रिमेन सेम, द ग्रोथ रेट विल बी दिस, डू यू थिंक दैट इज ए कंट्रोलेबल एस्पेक्ट? मैं आता हूं, हाँ। एक मिनट, एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, रविशंकर हैं पटना से। रविशंकर जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बताएं आपका क्या सवाल है। हेलो रविशंकर जी। हाँ जी, आप सवाल करिए प्लीज। मैं ये कर रहा हूँ जी कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान जो चालू किया गया है जी, सबों के लिए शिक्षा, हेलो जी जी, हाँ, सबों के लिए शिक्षा, उसका अभी तक क्रियान्वयन तो अभी तक हो नहीं पाया है जी। मैं क्या इसके बारे में एक जानकारी चाहता हूँ। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सवाल था। मैं धन्यवाद रविशंकर जी, आपने सवाल किया। मैं आपसे विरमानी साहब ये पूछ रहा था कि ये जो ग्रोथ रेट है जिसमें इन्फ्लेशन फैक्टर का ध्यान नहीं रखा गया है और ये प्रिज्यूम किया गया है कि इन्फ्लेशन विल आल्सो बी स्टैटिक लाइक दिस। हाँ, ये सही क्वेश्चन है। पिछले 80s में 70s में इन्फ्लेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, पर अब वो जो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है वो काफी चेंज हो गया, इसलिए मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती। और मैं थोड़ी आपको विश्लेषण देता हूँ व्यूअर्स के लिए। जी। रीजन ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको आपने ओपन कर दिया है, और देश विदेश में जो इन्फ्लेशन रेट था पिछले 10 साल 20 साल वो इंडिया के हिसाब से बहुत कम है जी। तो देयर विल बी अ प्रोसेस जिसको कहते हैं कन्वर्जेंस, तो इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, अभी शुरू हो गया है, और आगे जाते वक्त भी ये जो हमारा इंडियन इन्फ्लेशन रेट है वो जो देश का मतलब विश्व का वर्ल्ड का इन्फ्लेशन है उससे बहुत दूर नहीं रहेगा। तो इफ यू लुक एट द वर्ल्ड इन्फ्लेशन अभी वो कुछ 2-3% है, तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर आई डू नॉट सी कि इन्फ्लेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो ठीक है, उसमें कुछ मुझे दिक्कत नहीं लगती। मतलब डू यू थिंक दैट ये हमारे हाथों में है और हमारे बस में है? देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम ऑन इन्फ्लेशन फ्रंट। जी, मैं एक लौट के आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे सपनों के भारत के बारे में अगर आपके सामने कोई और सवाल हो और आप चाहते हैं कि आपका भारत कैसा हो, खास सोच से अर्थशास्त्र की दृष्टि से, तो आप हमें जरूर फोन करें। हमारा फोन नंबर है 2410001 2410003। छोटे से ब्रेक के बाद। दाम वाज And uncared for. Now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. सब्जी तवा फ्राई भरवा मसाला। MDH का नया तवा फ्राई मसाला सब्जी में भरा या ऊपर लगा है। स्वागत है मेरे सपनों का भारत कैसा हो, यानी कि 2020 में हमारे देश की आर्थिक सेहत कैसी होगी, देश कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा हो रही है। योजना आयोग ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है जिस पर पूरा देश बहस करना चाहता है, और बहस की इब्तिदा यानी कि शुरुआत हमने की है, और इस बहस को हम लोग लगातार चलाएंगे आगे आगे। शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होने वाला है। हमारे बीच में 3 मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका दोबारा से परिचय करा दूं। डॉक्टर SP गुप्ता हैं, सदस्य योजना आयोग, ललित खन्ना जी हैं, अरविंद बिरमानी साहब हैं। लेकिन गुप्ता जी, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा कि आप हमारे 2 व्यूअर्स ने जो सवाल किया था, हरदेव सिंह और रविशंकर, उनके सवालों का जरा जवाब दें तो बेटर रहेगा। They have asked 2 questions. The Ravishankar has asked about the Sarv Shiksha Abhiyan, which is not yielding the results, and how sure you are about in this document that you will have the education for all in 2002. In the document, let me give the background of the document. Yeah. It has taken the same type of approach as 10th plan is taken. Yeah. That means we make one assessment as to business as usual. Another is a best case scenario. Best case scenario, we are saying in the field of education and primary education, we have to take more use of the present communication technology.
from information technology. Speed can be increased like anything. Cost can be increased like anything. Beautiful software in the process. Therefore, business as usual, I agree that definitely this is very difficult to reach the target for completely giving all education. Yeah. Second is about Hardev Singh from Delhi, who has asked one question about the state funds. And the state fund, in the document, state center differences we have not done, but one thing we have clearly mentioned, the use of delivery system. And delivery system using it, we have detailed discussion on decentralization. Whole approach of the document is to Vision 2020, whatever happens in the political system in the country, decentralization is bound to come. People's awareness, because of the communication revolution and so on, is such you cannot stop of delivery system improving. And a chapter on governance is done. Therefore, on the basis of assumption on the best case scenario, we have enumerated how the delivery system can be improved. Mr. Gupta, we should initiate the discussion on this because I asked the question from Lalit Khanna about the GDP. Everybody has the apprehension. Virmani ji has also have the apprehension. How we have concluded that the country will go on 9% GDP and is it achievable? Now, first of all, a general statement. 7.2%, 7% GDP and 8%, 8.5 to 9% GDP. One you're thinking what will likely to come, forecasting concept. Another is what aspiration. That should be kept in mind. Second thing, very interesting, you find last 20 years in India, the per capita GDP double with population growth more than 2% and GDP growth less than 6%. Now, therefore, if we can presume a condition where the population growth will come down to 1.6%. That's what you have shown. कि 130 crore लोग हो savings जाएंगे. potentiality, investment potentiality goes up very much. And that basis, we thought this is a thing which is to be approached and achievable. Now, there another just general statement. In the 10th plan, if we say that changing all the policies we can attain 8%, sitting today, then after 20 years we will still not be able to 9% or 8.5% is not a good rosy scenario. जी गुप्ता जी, मिस्टर सचदेवा लाइन पे है. सचदेवा साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. बताएं आपका क्या सवाल है. सचदेवा साहब, शायद फोन कट गया. ललित जी, हम लोग बातचीत के दूसरे हिस्से में चलें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद हम बातचीत का इसी एरिया पे फोकस करेंगे क्योंकि वही गुप्ता जी की बातचीत से जो डॉक्यूमेंट में लग रहा है और डॉक्यूमेंट का पूरा लबो-लुबाब जो है, कंक्लूजन ये है कि डॉक्यूमेंट में फोकस है, जो एरिया चुना है इन्होंने, ग्रोथ की सीढ़ी जो रास्ता चुना है वो टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का चुना है. कम्युनिकेशन जो आज का एक्सपीरियंस है दैट इज ए पास्ट स्टोरी. कम्युनिकेशन में हो सकता है कल को रद्दो बदल छोटे मोटे हों. फ्यूचर इंडस्ट्री दे हैव नॉट प्लान्ड. बायोटेक होना है, न्यू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज होनी है या न्यू एग्रीकल्चर आनी है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे और कम्युनिकेशन के आधार पे अगर ये डॉक्यूमेंट है तो आई डाउट कि मेरे सपना भारत ऐसा ही होगा जैसा इसमें दिखाया गया. दो इश्यूज हैं इसमें. जो डॉक्टर गुप्ता अभी कह रहे थे वो ये था कि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के बेसिस पे अब बहुत ज्यादा लोगों को पढ़ाना लो कॉस्ट में संभव है. एक आदमी दिल्ली में पढ़ा रहा है, उसको सब इंटरेक्टिव बेसिस पे सवाल पूछ सकते हैं और जवाब दे देगा. 100 जगह और देख सकते हैं. वो पहले मुनासिब नहीं था. तो एक बहुत अच्छा टीचर दिल्ली में बैठ के या चंडीगढ़ में बैठकर या चेन्नई में बैठ के आसपास के नहीं, इवन ब्रिटेन में बैठ के बहुत से स्कूल बच्चों को पढ़ा सकते हैं. जी, वो एक बड़ा एडवांटेज है. जी, जो पहलू आप बात कर रहे हैं वो है कि हम अभी भी आईटी को एक ग्रोथ इंडस्ट्री के तौर पे देख रहे हैं. मैं यहां सिर्फ ये जिक्र करना चाहूंगा कि एक सर्च इंजन है गूगल, जो आम सर्च इंजन में अभी तक जी रहा है, बाकी मुसीबत में है. उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इन्हें बॉडी ऑफ इकोनॉमिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो इकोनॉमिस्ट ने चैलेंज की. उन्होंने ये कहा कि आईटी जो है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है, अब एक मैच्योर इंडस्ट्री होने वाली है और अगले 3-4 साल के बाद हमें
ग्रोथ रेट्स जो इसमें आएंगे वो जीडीपी ग्रोथ रेट के आसपास आएंगे। कोई यूएस में जो 10, 15, 20% एनुअल ग्रोथ रेट है वो अब खत्म होने जा रहा है। इस पोजीशन को लेने वाले सिर्फ वही थे, जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे वो उस बात के खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि अभी कुछ वक्त और चलेगा आईटी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पॉइंट को हमें सीरियसली लेना है। हम जो एफर्ट या जो हम फोकस आईटी ग्रोथ, मतलब जो सीडी का इंजन जो हम होप या ग्रोथ आईटी के थ्रू देख रहे हैं कि आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से हम बहुत कुछ यहाँ अचीव कर लेंगे, वो अगले 3-4 साल के लिए शायद ठीक है, लेकिन उसके बाद ग्रोथ रेट्स गिरेंगे। वीरमणि साहब, देखिए ये जो आइटम इन्होंने पिक किया है, मैं उसमें बिल्कुल सहमत हूं कि आईसीटी रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर। और भी हैं जो आपने मेंशन किए हैं, वो शायद इसमें नहीं आए हैं, पर ये सही है कि आईसीटी है और इसने ऑलरेडी दुनिया में रेवोल्यूशन चल रहा है पिछले 10 में भी। इसलिए कह रहा हूं, नाउ टेकिंग इट टू द कंट्री, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फोकस किया है दैट इज ऑल राइट, बट व्हाट इज मिसिंग इज द टी, द ट्रांसपोर्ट। आईसीटी आप देखिए ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो हमारी अगर इंटरनल रेवोल्यूशन हमें चाहिए आईसीटी के बेसिस पे, खाली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन से नहीं होगा। वो इंपॉर्टेंट है और मैंने बोला है कि इन्होंने अच्छा उसका विश्लेषण किया है, पर जो मिसिंग एलिमेंट है ना वो ट्रांसपोर्ट है। उसका मेरा क्या कहना है, एक तो नेशनल हाईवे प्रोग्राम एंड गेटिंग रोड्स आर बेसिक, तो कुछ इन्होंने मेंशन किया है उसमें, बट आई थिंक उसमें बहुत और दूर जाना है, वो रहता है। और दूसरा जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवेज। आई थिंक वी नीड अ रेवोल्यूशन इन रेलवेज, और उसका जो थिंकिंग है वो अभी भी वही ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट रेलवे सिस्टम में फंसा हुआ है। उसको अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो ये रेवोल्यूशन नहीं आएगा। नहीं, मेरा जो प्रमाइज था, जो जिस बात की ओर ललित जी ने इशारा किया कि 2020 का अगर ग्राफ तय करना है और आपको सीढ़ी पे चलना है, तो सीढ़ी बेटर कौन सी होगी, हम उसकी बात कर रहे थे। और हम बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईसीटी इंजन का एक ट्रांसपोर्ट, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक वेरिएबल हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी के बारे में दैट इज ए गोन केस, दैट इज ए हिस्ट्री नाउ। क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाला कल है, वो कुछ और इंडस्ट्री दर्शा रहा है। देखिए, जो हम इंडिया में, भारत में सोचते हैं ना कि आईसीटी इज ओनली सॉफ्टवेयर, दैट इज नॉट करेक्ट। जो आईसीटी रेवोल्यूशन है ना, दैट इज मच वाइडर। इट इज इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड जो है इंटरनेशनली फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई मीन फॉर बाय अ बिग अमाउंट इन द लास्ट डेकेड। जो आप चाइना की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, इट हैज बिकम वन ऑफ द मेजर ट्रेडिंग नेशन, दैट इज ऑल्सो आईसीटी। वो किस तरह? वो ऐसे है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ना, दैट हैज बीन टोटली ट्रांसफॉर्म्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स। पहले हम सोचते थे जैसे कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो सारा ऊपर से नीचे एक जगह पे होनी चाहिए। ये जो आईसीटी रेवोल्यूशन है ना, इसने बिल्कुल उसको ब्रेकअप कर दिया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक पहिए का एक पुर्जा एक जगह बना सकते हैं और दूसरा कहीं और उसको ला के तीसरी और चौथी जगह पे असेंबल कर सकते हैं। दैट इज द रियल आईसीटी रेवोल्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स। ये शायद हम इस देश में पूरी तरह समझते नहीं हैं। ओनली थिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। यू वांट टू इलैबोरेट? आई थिंक मेरे ख्याल हम लोग अलग अलग विषय डिस्कस कर रहे हैं। वीरमणि साहब अपनी जगह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और जो रेवोल्यूशन इंटरनेट लाया है वो शायद स्टीम इंजन के बराबर का एक रेवोल्यूशन है और उसका इम्पैक्ट आ चुका है। हम जो बात कर रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में एक नॉलेज फोकस, एक नॉलेज ड्राइव की बात की गई है, और उसमें आईटी का एक गिवन रोल है, एक एम्फेसिस है। मैं ये कह रहा था कि आईटी जो है वो शायद एक साइकिल के तौर पे पीक कर चुकी है, अब उसमें ग्रोथ रेट गिरने वाले हैं, और अगर हमें फोकस करना है एज ए नेशन नॉलेज एरियाज पे, तो शायद हमें कुछ और नॉलेज एरियाज ढूंढने होंगे, ताकि 5 साल बाद बूम किसी और नॉलेज एरिया में है, 10 साल बायोटेक का एरिया है, जैसे बायोटेक का एक नया एरिया आ रहा है। जी गुप्ता जी, कैन यू जस्ट टेल हिम, बिकॉज़ ही हैज एक्सप्लेन्ड द थिंग, और हमको हमारे पास टाइम भी कम है, वी विल डिस्कस दैट। In fact, if you see the growth areas, one area growth area I find is very interesting in India. The technical manpower in the labor force is only 5%, whereas the countries like Korea, it is 95%. And the countries, middle income countries, which is we are making intercountry comparison, is 45%.
if technical manpower has to be increased this much to prepare the labor force, because job opportunities cannot be done unless the labor force are equipped for that. If we prepare that, you find a huge thrust will come on the generation of technical manpower, instructors and so on. But there's tremendous scope is there. Samely we find in the field of healthcare, where allocation, public allocation is so low. And what we even did, on education, the allocation is so low. I'm surprised. And what we did, we tried to compare the inter-country comparison, that India at that per capita level what is needed. We find nearly 3 to 4 times we have to increase R&D expenditure. We have to increase expenditure on education by minimum 3 times or 2 times. Yeah. These are the things, implication is there. Now question is whether fiscal possibility will be there or not. Absolutely impossible sitting today to think in that term. ओके, Because गुप्ता the जी, budgetary हम problem लोग year लौट to करके आएंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत के अंतिम दौर में हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि के कौन कौन से इंजन ये मेरा सपनों का भारत का डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने जा रहा है, और उस पर बहस करेंगे और फिर हम आपके टेलीफोन भी सुनेंगे। हमारा टेलीफोन नंबर है 241001 241003। छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे सपनों का भारत, 130 करोड़ की आबादी हो जाएगी हमारे भारत की 2020 में, और योजना आयोग ने कागज तैयार किया है, एक प्रपत्र तैयार किया है जिसके हिसाब से सपनों का भारत बनाने की परिकल्पना की गई है, जहां कोई बेरोजगार नहीं होगा, भूखा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। एसपी गुप्ता जी हैं, ललित खन्ना जी हैं और विरमानी साहब हैं। इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मैं आपको ये बता दूं कि जो आर्थिक सीढ़ी है, ये जो जिस पर चलेंगे उसके इंजन क्या क्या होंगे, ये हम ग्राफिक की मदद से बताएंगे। इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, एजुकेशन लेवल्स आर राइजिंग रैपिडली, rates of technological innovation and applications are accelerating, information is being made available in greater quantity and quality than ever before, globalization is opening up new market। गुप्ता जी, हम इस बातचीत के इस दौर में अगर ये करें, और आपने जो पूरा विजन बताया है हमको, खास तौर से आप हमको ये बताएं कि आज की डेट में जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और ये जो सारी चीजें आपने पूरा सपना बुना है, क्या सरकार इस सपने को साकार करना चाहती है या आप बाहर से लोगों का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, और चाहते तो कितना प्रतिशत? Position is that it cannot be done by the government. Government will be facilitator. The general consensus of the people will come for this process, and then only we can reach this goal. Now, main purpose of this particular type of vision is we should not be very bogged down with economics, because it's very multidisciplinary concept. These days, for example, in any vision, no use of a growth if the benefit of growth is shared by all. And the world is so much become conscious of poverty reduction and other issues. Absolutely impossible these days to have a one-sided pocket growth. Now, in this context, we definitely feel that general public I want to ask you one question. You want to become a manufacturing country, the trading country, or the mixed country? What kind of a country you want to become in 2020? In general, the way it is going, our services sector has tremendous potentiality. But at the same time, somehow we have reached a plateau in manufacturing too early. विरमानी साहब, नहीं, मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं, क्योंकि ये तो बताया इन्होंने। इस पर मुझको एक बात का जवाब दे, आप तो सरकार में भी रहे हैं। जो रेड टेपिज्म है, जो लाल फीताशाही है, ये जो सपना है, उसमें टांग अड़ाने का काम जो होगा
उसमें इस सपने को मुझे लग रहा है कि ब्लर्ड हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा, यही मैं कहने चाह रहा था जी। देखिए, मैंने शुरू में बोला था कि मेरे विचार में इवन 7 to 7.5% ग्रोथ कैन अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव्स, पर वो तभी होगा व्हेन वी डू एग्जैक्टली एड्रेस दिस पॉइंट, द रोल ऑफ गवर्नमेंट। तीन चीजें होनी होंगी। रोल ऑफ द अफसर, एक जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है उसको रीफोकस करना पड़ेगा ऑन क्रिटिकल एरियाज जो गवर्नमेंट ही कर सकता है। जो बाकी चीजें हैं उसमें दो टाइप्स के एक्टर्स हैं, एक तो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको ये रेड टेप वगैरह से फ्री करना पड़ेगा, और दूसरा जो सिविल सोसाइटी का रोल है वो बहुत एनहांस करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सोसाइटी दैट विल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ललित भाई आप कहेंगे, फिर उसके बाद मैं इस सोसाइटी के मुद्दे पे आऊंगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में एंड में बहुत बढ़िया कमेंट किया हुआ है, एंड विच इज अ रिमार्केबल कमेंट इन 202, नो प्रोग्रेस कैन बी देयर इफ सर्टेन थिंग्स आर देयर। प्लीज यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस, द रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। देखिए, वो रास्ता तो खुल ही चुका है। अब लाल फीताशाही कुछ हद तक है, लेकिन सरकार इकोनॉमी में अपना हिस्सा कम कर रही है। हम ये तो देख के चलें कि नई इन्वेस्टमेंट्स तो करनी बंद ही कर दी है, डिवेस्टमेंट होती रहेंगी जी। और धीरे धीरे सरकार अपना रोल कम कर ही रही है। रेगुलेशन भी पहले से कम इंटरफेयरिंग है थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस है, तो वो चेंज धीरे धीरे होता रहेगा जी, और वो डिजायरेबल है जी। चलिए, मैं एक और मुद्दे पे आता हूं। आपने गुप्ता जी, you have mentioned a very pertinent and very important point, which is of a political nature, but you have mentioned in a very different tone and in a very subdued manner. You have said religious extremism and radical politics will continue to have adverse impact on our core values. This is, I find, the very, if it is there, very and sad. the country is going on that way. Yeah, see, as far as my political understanding is concerned, I tell you, you will have this election, the whole year this election is going to be there in 10 states, with the same color, same fashion which you are expecting, and this will go on. And how you have that kind of a vision fulfilling and all this odds? These are the caution points. In vision, for example, another caution point is, in 2020, Health Ministry said malaria will continue. Yeah. When malaria was already went up. This vision means not only good point, I am showing these are the signal points. Watch it. Otherwise we'll have problem. मैं आता हूँ, एक मंगेश हैं बिहार से, मंगेश त्यागी हैं, मेरे जाति बंधु हैं। मंगेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शायद फोन कट गया, लेकिन मैं ललित जी एक बात और इन्होंने कही इसी के साथ। He has cautioned about the Indo-Pak relationship. The fundamental ideological conflict between Pakistan and India is unlikely to be resolved without a major social political change in Pakistan. He has not talked about India because that is also required in India also. नहीं, मेरे ख्याल ये कह रहे हैं कि अगर वहां पे सस्टेन्ड बेसिस पे एक डेमोक्रेसी आ जाए, सस्टेन्ड बेसिस पे, लंबे तौर पे, तो फर्क पड़ जाएगा। मेरे mainly the political system. इन दोनों विषय रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। देखिए, आपने जो पहला विषय बोला है जी, दैट इज द मेन रीजन। मेरे को जब पूछते हैं लोग कि अगले 2 साल में क्या होगा, आप समझते हैं 7% होगा, 8% होगा, मैं कहता हूं नहीं होगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल इलेक्शंस आ रही हैं, जनरल इलेक्शन 1.5 साल में, 2 साल में, इसलिए ऑल वी हैव इज, मैंने उसका नाम दिया भारतीय रेट ऑफ ग्रोथ। एक प्लानिंग कमीशन नोट में उसमें मैंने लिखा है विच इज अबाउट 5.7, 5.8। तो मुझे तो ये भी नहीं है कि ये जो पहले आप 5 साल हैं इस सेंचुरी के, उसमें विल बी मोर देन 5.8 और मैक्सिमम 6। दैट इज माय फोरकास्ट जी, फॉर दिस रीजन। मगर गुप्ता जी, अगर हम पूरा पॉलिटिकल ग्रोथ को देखें, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिटिकल ग्रोथ के साथ जुड़ी है, एंड व्हाट वी सी कि देयर आर गोइंग टू बी 2 midterm polls in the coming days. In 2001 you will have the general election, and again possibly the set of governments are going to be formed with the coalition governments. 2006 you will have the another governments. So the political perception of this country will change almost 4 times in 2020. So how you will cope up with the things? Now, my feeling is because it will change 4 times, it is better not to obsess very much with today's limitations. We have a vision to do. ओके, ललित जी। देखिए, ये तो बात ठीक है कि 20 साल में
पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे कई निजाम बदलेंगे और कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक होंगे या नहीं होंगे, और हमारा जो एक वॉरियर लाइक रिश्ता बन गया है धर्म से, वो कम होगा या नहीं होगा जी, लेकिन इनका होना बहुत जरूरी है जी। मुझे इस पॉलिटिकल फील्ड में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन बगैर इसके हम आगे नहीं चल सकते। विरमानी साहब, आप क्या कहेंगे? वो हमने डिस्कस नहीं किया, बट आई थिंक द पॉलिसी रिफॉर्म नीडेड जो जरूरी है वो खाली इकोनॉमिक नहीं है, वो लीगल है, पॉलिटिकल है। इन माय व्यू वी कैन एलिमिनेट पॉवर्टी इफ वी डू एक्ट ऑन ऑल थ्री फ्रंट्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। दैट कैन बी अचीव्ड आपके हिसाब से। लेकिन एक सवाल और, इस डॉक्यूमेंट्स को छोड़ भी दें, यू आर सच ए सीजन्ड मैन एंड यू हैव बीन देयर in the whole economic field. Do you think in 2020, particularly the global situation, the economy where it is going, India will fit into that, and can certain things is achievable what you are talking about in this document? I have no doubt. Definitely. Lalit bhai, what can be achieved out of this document? If I say, you see, I do not know the detail that Dr. Gupta knows. I do not even know our global focus. मैं ये जानता हूं कि हमारी बहुत सी ग्रोथ जो है इंटरनेशनल प्ले से आएगी। हम क्या बाजार में वहां बेचते हैं, सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, लेकिन हम वहां किस चीज की डिमांड एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे उस डिमांड के लिए ओरिएंट कर रहे हैं ब्रॉड कैटेगरी में जी। और वो सोचना जरूरी है कि हमारा फोकस आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर है, जबकि डिमांड 5-7 साल बाद शायद किसी और एरिया में होगी। अब वो इश्यूज इन्होंने जरूर डिस्कस किए होंगे, लेकिन वो इस रिपोर्ट में नहीं है। मैं जो ग्लोबल हमने डिस्कस ही नहीं किया, शायद अगली बार ही करेंगे, क्योंकि ग्लोबल एवोल्यूशन में कई चीज होना है। मैं 1-2 चीजें मेंशन करूंगा। ये अगले 20 साल में जो वेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, वो एशिया को शिफ्ट करेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। यस। और खास करके चाइना विल बिकम अ मेजर प्लेयर इन द होल वर्ल्ड। तो वो चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए, पर अब टाइम नहीं है। जी, धन्यवाद विरमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ललित भाई आपका भी, और गुप्ता जी आप आए, और मैं चाहूंगा कि बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे आपके इस विजन 2020 पर, और चाहेंगे कि देश भी जाने कि किस क्षेत्रों में आपका विजन क्या है, और वो डॉक्यूमेंट्स भी आप हमको दें जो आपके सदस्यों ने लिखे हैं, और जो डॉक्यूमेंट, ताकि विस्तार से चर्चा हो और पूरा देश जाने। गाना फिर मैं उसी से खत्म करूंगा कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा। हालांकि इस डॉक्यूमेंट में बात की गई है पीस की, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। शायद मेरे सपनों के भारत के बारे में एक लंबी बहस होनी है, और जन टेलीविजन ये बहस चलाएगा। हम लोग लगातार इस मेरे सपनों के भारत के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपने जिस तरह शिरकत की है वो तारीफ काबिल है, और आपकी शिरकत रहेगी हमारे इस कार्यक्रम में। हम कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।